My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, this is the 15th anniversary of the business blessing plan of Jesus Calls. यीशु बुलाता है सेवकाई के व्यवसाय आशीष योजना की यह 15वीं वर्षगांठ है। Thank you, Jesus, for blessing thousands and thousands of businesses as thy children join the business blessing plan. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हजारों व्यवसायों को आशीष देने के लिए जब आपके संतानों ने व्यवसाय आशीष योजना में सहभागिता ली। I believe you are involved in business मैं मानता हूं कि आप व्यवसाय में रत हैं or agriculture या फिर कृषि में or maybe running institutions या आप संस्थाएं चला रहे हैं or involved in sales. या फिर आप कोई विक्रय करता है। God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करता है because it is God who has placed you in this mission. क्योंकि ये परमेश्वर है जिसने आपको इस कार्य में रखा है। Yes, your business is God's business. हाँ, आपका व्यवसाय परमेश्वर का व्यवसाय है। The scripture says in John 15 and verse 16, यूहन्ना 15:16 में शास्त्र कहता है, Jesus says, यीशु कहते हैं, you have not chosen me, तुमने मुझे नहीं चुना but I have chosen you. पर मैंने तुम्हें चुना है। I have chosen you to do business. मैंने तुम्हें चुना है कि तुम व्यवसाय करो। I have chosen you to sell. मैंने तुम्हें बिक्री के लिए चुना है। I have chosen you to produce. मैंने तुम्हें चुना है कि तुम उत्पादन करो। I have chosen you to manage. मैंने तुम्हें व्यवस्था करने के लिए चुना है। You're doing my business. तुम मेरा काम कर रहे हो। Yes, there are millions of people who say, I just want to get a job and I want to settle down. हाँ, लाखों लोग हैं जो कहते हैं मुझे एक नौकरी पानी है ताकि मैं जीवन में स्थापित हो जाऊं। But only very few launch into business. लेकिन केवल कुछ ही हैं जो कि व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं। Yes, the Lord looked at Peter हाँ, प्रभु ने पतरस को देखा in Luke chapter 5 verse 3 to 5. और लूका अध्याय 5 वचन 3 से 5 When he में gave his boat for Jesus to stand on it and bring God's word to the people, जब उसने अपनी नाव यीशु को दी कि वो उस पर खड़े होकर के परमेश्वर का वचन लोगों the को Lord सुनाए, looked at his business तो परमेश्वर ने उसके व्यवसाय को देखा and he knew that Peter could not catch any fish. और वो जानता था कि पतरस कोई मछली नहीं पकड़ पाया था। He was in the lowest levels of his business. वो अपने व्यवसाय के सबसे निचले स्तर पर But था। with all that, he had given his boat for the ministry of Jesus. तो भी उसने उस परिस्थिति के बावजूद अपनी नाव यीशु की सेवकाई के लिए दिया। You have done that too. आपने भी यही किया है। You have given your business, the proceeds of your business, your money, your time to serve Jesus. आपने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा, अपना समय, अपने उत्पाद को यीशु मसीह की सेवा के लिए दिया है। And so, as the Lord spoke to Peter, इसलिए जैसे प्रभु ने पतरस से कहा, he says to you also, वो आज आपसे भी कहता है, you have nothing in your hands. तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, You have lost everything. तुमने सब कुछ खो दिया है। But my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, I'm telling you, मैं तुझे बताता हूँ, now according to my word, launch into the deep. अब मेरे वचन के अनुसार तू गहरे में जाल डाल, Go back into the waters. वापस फिर उस पानी में जा, Go back to start your business. फिर से अपने व्यवसाय को तू शुरू कर। And he said, Lord, this is not the right time to fish. और पतरस ने कहा, प्रभु मछलियां पकड़ने के लिए सही समय नहीं है। I have tried to catch the fish the whole night, but I could not catch anything. और मैंने तो सारी रात मेहनत की लेकिन मैं कुछ भी नहीं पकड़ पाया। And all those who fish with me are gone. There's nobody to stand with me. और जो मेरे साथ मछलियां पकड़ते वो भी चले गए, कोई मेरे साथ नहीं है। But he said, लेकिन उसने ये कहा, Lord, you have spoken that I should go to the deep and start my business again. प्रभु जी, तूने कहा है कि मैं गहरे में जाऊं और फिर से अपना व्यवसाय शुरू करूं, I will obey you. इसलिए मैं तेरी मानूंगा। Though nobody is there, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। I have tried and I have failed. मैंने कोशिश की और मैं असफल रहा हूँ। This is not the right time to launch the business again. और फिर से काम शुरू करने का ये समय भी सही नहीं है। Yet I am obeying you, Lord Jesus, and I am going. लेकिन प्रभु यीशु, मैं आपकी बात मान करके जा रहा हूँ। Today God speaks to you. आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, Go back and cast your net
start your business and do your work in the business. वापस जा करके फिर से अपने चाल डालूं और अपना व्यवसाय एक बार फिर से शुरू करूं। Yes, the word of God went with Peter as he obeyed God and launched the business. हाँ, परमेश्वर का वचन पतरस के साथ गया और जब पतरस ने यीशु की बात मानी तो वो सक्रिय हो गया। The word for miracles and prosperity is coming with you today from Jesus, my dear brother, my dear sister, for your business. आपकी समृद्धि और चमत्कार के लिए आज परमेश्वर का वचन मेरे भाई और बहनों वो आपके साथ आ रहा है। And that word is for miracles. और वो वचन चमत्कार के लिए है। Yes, Peter went. हाँ, पतरस गया। Jesus said, cast your nets. यीशु कहते हैं अपने जालों को डालो। But when he cast the first net, जब उसने पहला जाल ही डाला, oh, there was an overflowing catch. वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त पकड़ हुई। He could not take the fish into his boat. There was much more just in that one net. और एक ही जाल में इतनी ज्यादा मछलियां आ गईं कि उन सबको अपने नाव पर नहीं ले पाया। So he signed for help and brought another boat. तो उसने सहायता मांगी और दूसरे मित्रों को बुलाया। His friends, his relatives came. उसके मित्र, उसके संबंधी वहां पर आए। And God filled their boat also. और परमेश्वर ने उनकी नाव को भी भर दिया। Double measure. दुगना हिस्सा, Double measure. दूना हिस्सा। Yes, that's what God wants to give you. हाँ, परमेश्वर आपको यही देना चाहता For है। all your losses. आपके हर एक हानि के He बदले is rendering double to you today. आज वो आपको हर एक चीज दूना दे रहा है। Because you're doing your business according to God's word. क्योंकि आप अपना व्यवसाय परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं। Believing in Jesus. यीशु पर विश्वास करके, And because you have given your best to Jesus, क्योंकि आपने अपना सर्वोत्तम यीशु को दिया है, He is going to fill your boat वो आपकी नाव को भी भरने जा रहा है। and the boats of your relatives, your friends, your co-workers. और आपके मित्र, आपके संबंधी और आपके साथ जितने भी सहकर्मी उनकी नावें भी Everybody will be filled. हर एक जो है भर जाएंगे। I pray this blessing upon your life, your business, in the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं इस आशीष को आपके और आपके मित्रों के जीवन में, आपके व्यवसाय के लिए मांगता हूँ। Lord, confirm it, Lord. प्रभु आप इसे दृढ़ करें। Confirm it for your son. अपने बेटे के लिए आप इसे पक्का करें। Confirm it for your daughter. अपनी बेटी के लिए आप इसे पक्का करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। And prove that it is you who has called them to do this business. और प्रमाणित करें ये आप हैं जिन्होंने इनको इस व्यवसाय को करने के लिए बुलाया This है। business may be failing for everybody, Lord. हर एक के लिए चाहे ये व्यवसाय जो है असफल होता रहा हो प्रभु, But for thy children, let it bear fruits. लेकिन आपके संतानों के लिए ये फलवंत हो। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। My precious friend. मेरे प्रिय मित्र, Yes, when God calls you to do this business, जब परमेश्वर आपको इस व्यवसाय के लिए बुलाता है, He will make you bear fruits. वो आपको निश्चय ऐसा करेगा फलवंत हो। He will give you the profits. वो आपको उसके लाभ देगा। He'll make you fruitful for your family. आपके परिवार के लिए वो आपको फलवंत करेगा। And He will make you fruitful to the society. और समाज के लिए भी आपको उपयोगी He'll बनाएगा। make you fruitful for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए आपको फलवंत करेगा। I command you to be fruitful from now on in Jesus' name for everyone. हर एक के लिए यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि आप जो है हमेशा फलवंत बनते You जाएं। may say, now I am a barren tree. आप कह सकते हैं मैं तो अभी एक बांझ वृक्ष हूँ, I have no fruits. मुझ में कोई फल नहीं है। But as you are going and doing this business according to God's calling in your life, you will bear fruit. लेकिन जब आप अब इस व्यवसाय को परमेश्वर की बुलाहट के रूप में करने जा रहे हैं तो आप फलवंत होंगे। Doing your business itself is a calling from God. इस व्यवसाय को करना ही परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट है। Many people say, I'm doing business, brother, but I'm feeling guilty that I'm not serving God. कई लोग कहते हैं भाई मैं व्यवसाय कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपराध बोध होता है, मैं ईश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूँ। My friend, you must remember, doing this business itself is answering the call of God for your life. मेरे मित्रों, आपको ये समझना है कि इस व्यवसाय को करना ही आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट के लिए आपका प्रत्युत्तर है। So the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है, whatever your hand finds to do it with all your strength. जो कुछ भी तुम्हें करने के लिए मिले तुम उसे अपने सारे सामर्थ्य के साथ करना। So every day, thank God for this business He has given you. इसलिए जो व्यवसाय परमेश्वर ने आपको दिया है प्रतिदिन उसके लिए धन्यवाद करें। Thank God for the shop.
आपके दुकान के लिए धन्यवाद करें, Thank God for the institution. आपके संस्था के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, Thank God for the land that you are doing your cultivation in. परमेश्वर का धन्यवाद करें उस जमीन के लिए जिसमें आप खेती करते हैं। Just thank God. बस ईश्वर का धन्यवाद Say, I'm करें। doing the calling of God. I'm fulfilling the will of God through this business. कहें कि इस कार्य के द्वारा, इस व्यवसाय के द्वारा मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, And the Lord will direct you to be blessed. और परमेश्वर आपको निर्देश देंगे कि आप आशीषित हों, You will bear fruits. आप फलवंत होंगे, And fruits that will remain. और ऐसे फल जो कि हमेशा बने रहें। This verse says your fruit will remain. ये वचन कहता है तुम्हारा फल बना रहेगा, It will remain from generation to generation in the name of Jesus. यीशु के नाम में ये पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक बना रहेगा। I command that your business will not fail. मैं आज्ञा देता हूँ कि आपका व्यवसाय जो है वो असफल ना होगा, It will multiply, वो बहुगुणित होगा, multiply, बढ़ता जाएगा, expand, वो फैलता जाएगा, diversify, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ेगा, add more territories, इसकी सीमाएं जो है और बढ़ेंगी, add more products, और भी ज्यादा उत्पाद आपके साथ add होंगे, more institutions, और उसमें और भी संगठन आपके होंगे, and your boats will double and it will overflow. और आपकी नाव जो है वो दुगनी होकर के उमड़ने लगेगी। You will bear much fruit and the fruit will remain. आप बहुत फलवंत होंगे और आपके फल बने रहेंगे, And you will remain in Jesus also. और साथ ही आप यीशु में भी बने रहेंगे, Because the fourth blessing in that verse says, whatever you ask in the name of Jesus to the Father, He will grant it. क्योंकि उस वचन में चौथी आशीष जो है कहती है यीशु के नाम में आप जो भी मांगोगे पिता उसे आपके लिए पूरा करेगा, Because you're doing the will of God through the business. क्योंकि उस व्यवसाय के द्वारा आप ईश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। Every prayer will be answered. हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। My friend, you must remember, many of the saints in the Old Testament were business people. मेरे मित्रों, आपको याद रखना है कि बहुत से संत जो पुराने नियम में थे वे सारे के सारे व्यवसायी थे। God spoke to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, called him, उसको बुलाया, and he said, और उसने कहा go from place to place and walk the cities and the nations. कि तू अलग अलग देशों में जा और तू शहरों में और राज्यों में वितरण He कर। was just walking, वो तो बस चलता जा रहा था, but God blessed him. लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी, And he started doing business with every tribe, और वो हर एक जातियों के साथ व्यवसाय करने लगा, every nation. हर एक देशों के साथ, And he became very rich. और बहुत ही धनी हो गया। Yes, he was a business person, but he was also walking with God. हाँ, वो एक व्यवसायी था लेकिन वो साथ ही ईश्वर के साथ चलता था। Every place he went to as led by the Lord, he would first build an altar, pray, and then only start his mission in that city. जिस स्थान पर भी वो गया परमेश्वर की अगुवाई में पहले उसने एक वेदी बनाई, वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर व्यवसाय किया, God blessed his work. और परमेश्वर ने उसके कार्यों को आशीषित किया, And different businesses came to him, he prospered. और अलग अलग व्यवसाय उसके पास आए और उन सब में वो संपन्न हुआ। The children of Heth said, Abraham, you are a mighty prince amongst us. हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा Though प्रधान you है। are a foreigner from a foreign country, yet you are like a prince amongst us. जो भी तू बाहर से आया हुआ हमारे लिए एक परदेसी है, तो भी तू हमारे लिए एक राजा के समान है। Look at Isaac, his son. और उसके बेटे इसहाक को आप देखिए, He also prayed in the evening for God's direction. उसने भी संध्या के समय परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना की, And in the morning, God revealed to him और सुबह के समय परमेश्वर ने उसे प्रकट किया where he should sow, कि उसे कहाँ बीज बोना है, and he sowed, और उसने बोया, obeying God. परमेश्वर की आज्ञा मानकर। Even in the business, whatever you do, wherever you sow, it is obeying God. व्यवसाय में भी आप जो भी करते हैं, जहाँ भी आप धन लगाते हैं, वो ईश्वर की आज्ञा पालन होना है, And God is willing to show you and guide you in that. और परमेश्वर उसमें आपकी अगुवाई करेगा और निर्देश देगा। And when you obey God and sow into each business, God is so pleased. और जब आप आज्ञाकारिता के साथ हर एक व्यवसाय में निवेश करेंगे तो परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होंगे। And God was pleased with Isaac when he did it and blessed him. और जब इसहाक ने ऐसा किया, परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर के उसे आशीष दी, And he got 100 times return as a harvest for the seeds he sowed in obeying
God. और परमेश्वर की आज्ञा मान करके जो बीज उसने बोया था उसका उसने 100 गुना फल पाया। And my friends, और मेरे मित्रों, not only that, उतना ही नहीं, the enemies, the king of that land became jealous with him उसके जो शत्रु थे, उस देश का राजा उससे जलन रखने लगा and started closing the wells his father and he himself were digging. और उन सारे कुओं को जो उसने और उसके पिता ने खोदे थे वो वापस बंद करने लग गया। And when they stopped or closed one well, Isaac would go and dig another well. जब वे एक कुएं को पाट देते तो इसहाक जा करके एक दूसरा कुआं खोद लेता था। He never fought with them. वो कभी उनसे लड़ा नहीं। When the wicked people close down one of your businesses, go and start another one. जब दुष्ट लोग आपके एक व्यवसाय को बंद कर दें तो जा करके आप एक दूसरा व्यवसाय शुरू करें। And Isaac dug, again water came, another well, water came. और इसहाक ने कुआं खोदा और फिर से उसमें से पानी निकला। He went on digging. और वो खोदता रहा। They went on closing. वो बंद करते रहे। And he went on digging. लेकिन वो खोदता रहा। And the water kept coming. और पानी उसे मिलता और मिलता रहा। Finally, the wicked people came and made peace with him, saying, God is with you. We are not able to do anything to you. आखिर में अंत में जितने दुष्ट लोग थे वो आकर के कहने लगे, ईश्वर तेरे साथ है, हम तुझसे बराबरी नहीं कर सकते। You have become so big. Now you have so many wells. क्योंकि अब तो इतना महान हो गया है, तेरे पास इतने ढेर कुएं हैं। If the wicked people had not closed his well, number one, he would have stayed there with just one well. अगर दुष्ट लोगों ने उसके कुओं को पाटा नहीं होता तो पहली बात शायद उसने उसके बाद नए कुएं खोदे ही नहीं होते। But they went on closing. लेकिन वे उसको बंद करते रहे। He went on digging. और वो नए कुएं खोदता रहा। As a result, he had many wells. जिसके कारण से उसके पास अनेक कुएं हो गए। If the wicked people had not come, he would have had only one well. अगर दुष्ट लोग नहीं आते तो उसके पास केवल एक ही कुआं होता। But when the wicked people came, God multiplied him, made him dig so many wells, and he became very rich again. लेकिन जब दुष्ट लोग आए तो परमेश्वर ने उसे अनेक कुएं खुदवाए और इस तरह से परमेश्वर ने उसको बहुत ही धनी कर दिया। Maybe he sold water to the kingdom of that nation. हो सकता है उस देश के लोगों के लिए वो पानी बेचता था। Don't be afraid when wicked people come to close your well. इसलिए आप न डरें जब लोग आकर के आपके व्यवसाय या आपके कुएं को बंद करने की कोशिश करें। Start another mission. आप एक और कार्य शुरू God करें। will bless that. प्रभु से आशीष देगा। And when they come to close it, start another one. और जब उसे बंद करने के लिए आए तो आप नया शुरू करें। You will multiply. आप बहुगुणित होंगे। Yes, the wicked people only will help you to multiply. हाँ, केवल दुष्ट ही हैं जो आपको बहुगुणित होने में सहायता And करेंगे। God will not rest in bringing more water, more blessing to you. और परमेश्वर कभी भी विश्राम नहीं लेगा कि आपको और ज्यादा पानी की आशीष दे। And he had a wonderful family life with his wife. और अपनी पत्नी के साथ उसका एक बहुत ही अद्भुत पारिवारिक जीवन God भी will do था। that for you. परमेश्वर आपके लिए भी यही करेंगे। Look at his son Jacob. उसके बेटे याकूब को देखें। He also was cheated 10 times with his salary from his own father-in-law. वो भी अपने ही ससुर के द्वारा अपने सैलरी के निमित्त 10 बार धोखा खाता है। But every time he was cheated, लेकिन हर बार जब उसके साथ धोखा हुआ, I believe he prayed. मेरा विश्वास है उसने प्रार्थना की। God's revelation came. परमेश्वर का प्रकाशन उसे मिला How he should multiply his sheep. कि किस तरह से वो अपनी भेड़ों को बहुगुणित करे। And every time the salary was changed, whatever salary was being given to him, that multiplied several times. और जब भी उसकी तनख्वाह बदली जाती थी तो हर बार जो है उसकी तनख्वाह कई गुना बढ़ करके उसको वापस मिल जाती थी। More goats and more sheep came. उसके पास और भी भेड़ और बकरियां हो गईं। He had doubled. उसके पास दूना हो गया। Oh, what a wonderful blessing. ओ कैसी अद्भुत आशीष है ये। God multiplied his children. परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ाता गया। And all of them became great tribes. और उनमें से हर एक जो है महान जातियां बन गईं। And God built a nation in his name. और उसके नाम से परमेश्वर ने एक देश को स्थापित किया। Such multiplication from nothing. शून्य से एक ऐसी बड़ी बढ़त उसे मिली। That's how God is going to bless you in the business. परमेश्वर आपको व्यवसाय में बिल्कुल ऐसे ही आशीष देंगे। Don't be afraid. ना डरें। Look at Joseph. यूसुफ को देखें। He was in the prison. वो तो बंदीगृह में था।
but God was with him. लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। You may be in the prison today. हो सकता है आज आप बंदीगृह में हो, You may have wicked people against you, आपके खिलाफ में दुष्ट लोग खड़े हों, closing your works. आपके कामों को वो बंद कर रहे हों। Maybe the market is not for you. You don't have any fish. हो सकता है बाजार आपके लिए ना हो, आपके पास कोई भी मछलियां नहीं है। Like Abraham, maybe you're wandering from place to place. हो सकता है अब्राहम के समान आप एक स्थान से दूसरी जगह भटक रहे And हैं। maybe like Joseph, you're in prison with no one to help, nobody to think of you. या हो सकता है यूसुफ के समान आप जो है एक बंदीगृह की परिस्थिति में है, जहां आपकी सहायता के लिए आपके साथ कोई नहीं है। I have chosen you. मैंने तुझे चुना, I have called you to do business. मैंने तुझे व्यवसाय करने के लिए बुलाया है। According to Psalm 32:8. भजन संहिता 32 वचन 8 के अनुसार, I will put my eyes upon you, my son, my daughter. मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं अपनी आंखें तुझ पर लगाऊंगा, I will give you counsel. मैं तुझे सलाह दूंगा, I will show you the way to go. मैं जिस राह में तुझे चलना है वो रास्ता दिखाऊंगा। Yes, that's why God gives you the Holy Spirit. हाँ, इसलिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता For है। you to do business, the Holy Spirit will guide you. आप व्यवसाय करने के लिए स्वयं पवित्र आत्मा जो है आपकी अगुवाई करेगा। And he guided Joseph as he was filled with the Holy Spirit, according to Genesis 41:38. और उत्पत्ति 41-38 के अनुसार से जब यूसुफ पवित्र आत्मा से भर गया था तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। God showed him परमेश्वर ने दिखाया how to grow food which would last for 14 years, even through the famine, and which would feed the whole world. कि किस तरह से उसे भोजन का उत्पादन करना है और उसको सुरक्षित रखना है कि 14 वर्षों तक वो सुरक्षित रहे और पूरे संसार को भोजन वस्तु दे। Yes, food technology. हाँ, हम फूड टेक्नोलॉजी यहाँ देखते हैं। Second, दूसरी बात, God showed him how to preserve the food for 14 years to feed all the people. परमेश्वर ने उसको ये दिखाया और सिखलाया कि लोगों के लिए कैसे 14 वर्ष तक भोजन को संरक्षित रखा जाए। Food preservation technology. पुनः फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी यहाँ है। And thirdly, और तीसरी बात, how to have a financial model to keep a country stable. कैसे एक देश को स्थापित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए किस तरह की आर्थिक व्यवस्था हो। And fourthly, और चौथी बात, God showed him how to distribute food to all the people. कैसे उस भोजन वस्तु को सारे लोगों के बीच में वितरण करना है, वितरण करना है, वो भी उसने सिखाया। Yes, food distribution. हाँ, यहाँ हम भोजन वितरण की व्यवस्था देखते हैं। And finally, God showed him how to save humanity and make them live. और अंत में परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे मानवता की रक्षा करना है और कैसे जीना है। The Holy Spirit who is in you, who has called you, will show you how you should do everything every day. पवित्र आत्मा जिसने आपको बुलाया और आप में रहता है, आपको प्रतिदिन दिखाएगा कि आपको कैसे जीवन जीना है। There was a young man several years ago in the United States. कई वर्ष पहले एक जवान था जो यूएसए में रहता था। At that time there was a terrible depression and the financial markets were failing. उस समय एक बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी का समय था और संस्थाएं बंद हो No रही money, थी। कोई भी पैसे नहीं no थे, job, कोई नौकरियां नहीं थी and people were frustrated and they were oppressed without anything. लोग परेशान थे और वस्तुओं के बगैर वो तंग हो रहे थे। But this young man said, लेकिन इस जवान ने कहा, Lord, in the midst of this depression, you are still God and you are my God. प्रभु जी, इस मंदी के बीच में भी आप परमेश्वर हैं और आप मेरे परमेश्वर हैं। Even now you can make me a millionaire. इस मंदी के दरमियान में भी आप मुझे करोड़पति बना सकते हैं। As he prayed that prayer, जब उसने वो प्रार्थना की, God showed him in a vision परमेश्वर ने एक दर्शन में उसे दिखाया how to build a mechanized plow. कि किस तरह से एक मशीनी जोतने के यंत्र को वो निर्माण करे। And he drew it in the morning. और सुबह उसने उसे चलाया। Until then, it was only a manual plow with the animals that they were plowing with. तब तक जो है लोग अपने हाथों से जानवरों की सहायता से ही जुताई किया करते थे। But he produced an industrial design of a mechanical plow. लेकिन उसने एक मशीनी जोतने के यंत्र के लिए एक नमूना बनाया। And a company came and bought his model for $1 million immediately. और एक कंपनी आगे आई
और तत्काल ही उसके मॉडल के लिए उसे 10 लाख में उन्होंने खरीद The लिया। Lord said, और प्रभु ने कहा in the last days, अंत के दिनों में I will pour my spirit upon all flesh, मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा, and your young men shall see visions. और तुम्हारे जवान जो है वो दर्शन देखेंगे। Yes, it's time for you to have visions like Joseph, हाँ, ये समय है कि आप यूसुफ के समान दर्शन देखें, like Jacob, याकूब के समान, like Isaac, इसहाक के समान, like Abraham, अब्राहम के समान, for you to multiply the business ताकि आप अपने व्यवसाय को बहुगुणित करें, so that the name of the Lord will go through the country. ताकि परमेश्वर का नाम पूरे देश में फैल जाए। And like Joseph, you will save humanity. और यूसुफ के समान आप मानवता की रक्षा करें। You have the calling of a prophet of God in business to save humanity. मानवता को बचाने के लिए व्यवसाय में भी आपके लिए एक भविष्यवक्ता की बुलाहट है। Now I pray that the prophetic anointing will come upon you in Jesus' name. और अब मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम में वो भविष्यवक्ताई अभिषेक जो है आपके ऊपर आ जाए। Holy Spirit, fill your daughter. पवित्र आत्मा अपनी बेटी को भर दे। Fill your son, Lord. प्रभु अपने बेटे को आप भर दे। Open their eyes. उनकी आंखों को खोल दे, Let them know what they should do, what you have planned for them to do. ताकि वे जाने कि आपने उनके लिए क्या योजना बनाई है कि उन्हें क्या करना है। And show them the product. और आप उन्हें वो उत्पाद भी दिखाएं, Show them the technology. उन्हें वो तकनीक बताएं, Show them the way to do things in agriculture. और कृषि में चीजों को करने के तरीके आप उन्हें बताएं। Let them produce 1,000 times वे 1000 गुना बढ़ करके उत्पादन and लें save humanity, Lord, और मानवता की रक्षा करें प्रभु, and rise up to the highest levels in the nation. और देश में वो सर्वोच्च स्थानों तक पहुंचने पाएं। Thank you for this grace. इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। In the midst of their enemies, anoint their head with oil, Lord, उनके शत्रुओं के बीच में भी उनके सिरों को आप तेल से अभिषेक with the करें, revelation from God. परमेश्वर से एक प्रकाशन के Let the द्वारा finances overflow. होने दे, उनके लिए पैसे जो है उमड़ते चले जाएं। Demon powers which have bound them, leave in Jesus' name. शैतानिक ताकतें जिन्होंने उन्हें बांध रखा है, यीशु के नाम में चले Let there जाएं be great prosperity. और वहां महान संपन्नता And let them build your kingdom through their finances. और अपने पैसों के द्वारा वो आपके राज्य की स्थापना करें, As Abraham, Isaac, and Jacob and Joseph did. वैसे ही जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब ने आपके लिए किया था। Thank you for this blessing, Lord. धन्यवाद प्रभु इस आशीष के लिए। Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। My friend, like this video. और इस वीडियो को पसंद करें And also subscribe to this channel. और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Share this with all your friends. आप इस जानकारी को अपने हर एक मित्रों के साथ साझा करें। यीशु बुलाता है व्यवसाय आशीष योजना। अगर आप अपने व्यवसाय, दुकान, काम या बिक्री के लिए प्रार्थना के द्वारा उसमें प्रभु यीशु की आशीषें चाहते हैं, तो आज ही अपने व्यवसाय को यीशु बुलाता है कि व्यवसाय आशीष योजना में पंजीकृत कराएं। दिनाकरण परिवार और प्रार्थना योद्धा प्रतिदिन आपके व्यवसाय के लिए प्रार्थना करेंगे। इस योजना में शामिल होने के द्वारा आप लाखों लोगों के आंसुओं को भी पोंछेंगे। अधिक जानकारी अथवा पंजीयन हेतु आज ही हमारी वेबसाइट www.jesuscalls.org पर भेंट करें अथवा अपने निकटतम यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन से संपर्क करें। यीशु बुलाता है व्यवसाय आशीष योजना आपके व्यवसाय को परमेश्वर के आशीषित हाथों में रखेगी।